When you have to become a brand as a startup, you start with the perception of a brand. What is Bharat and how is it different from India? There is a cost of expanding to Bharat. Bharat is much larger in geography. नाइका का एग्जांपल लेते हैं तो अगर वो दिल्ली बॉम्बे की आप SKUs देखोगे, जब आप वहाँ देखोगे तो उनके प्राइस पॉइंट भी अलग होगा, और वही जब आप छोटे शहर में देखोगे, रोहतक में देखोगे, तो वो थोड़ा सा ट्वीट हो जाएगा. तो फिर ट्रेंड्स कैसे बनते हैं? इफ यू लाइक लुक एट एनी ब्रांड्स, कोई भी पूरे ब्रांड का एक एम्बेसडर नहीं होता है, हर प्रोडक्ट का एक एक होता है. What are the recipes for failure? Oh God. In this podcast, we are understanding the difference between Bharat and India. अगर आप इंडिया में कोई ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है. नाइका और मिनिमलिस्ट जैसे ब्रांड्स ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई कि वो भारत और इंडिया दोनों में सक्सेसफुल हो पाए? इक्विटी को कब, कितना और किस फॉर्मेट में देना चाहिए, इस बारे में बात बहुत होती है, लेकिन क्लैरिटी अभी तक नहीं है. इस पॉडकास्ट में आई होप यू फाइंड इट कीप फ्लोटिंग विद द फिश. What is Bharat and how is it different from India? India somehow in the startup or the investment sectors has become the big cities, the metros, the technology savvy, high end, luxury, or a better style of living kind of people who the markets have penetrated. Bharat has become synonymous with every tier 2, tier 3, tier 4 and rural India, where many technologies have not been able to penetrate. Whether it's, for example, taxis, Uber and Ola, and to many e-commerce markets or dark stores, because there is a cost of expanding to Bharat. Bharat is much larger in geography, much larger in number, and much more difficult because there are vernacular languages, there are behavioral issues, there are weather conditions that are different, there are political conditions that are different. So I think that is referred to as Bharat. So when someone is solving a problem, you do whatever is easier to do. So if you are wanting to solve it in Delhi NCR, you start with Delhi NCR and then you go to the other metros and gradually you go to tier 2 cities and then. Right. But Bharat ko solve karne ke liye thought process, approach, tweeting of that technology or the UI UX is required. So वो दो market अलग-अलग इसलिए हैं. So that is why nomenclature wise, we as investors or we as startup people started to call it India, which is the easier sector, which is more universal, which is more cut copy paste from global problems and solutions or unique India problems and solutions. And then it goes to Bharat being the next thing where you have to adapt to a different kind of customer, different kind of geography. क्या ये कहना सही होगा कि जो इंडिया का टियर 1 है, मेट्रो सिटीज है, वो ग्लोबल सिनेरियो से काफी सिमिलर है? नहीं, देखिए कोई भी दो चीज सिमिलर नहीं है. दिल्ली बॉम्बे सिमिलर नहीं है, साउथ बॉम्बे नॉर्थ बॉम्बे से सिमिलर नहीं है. सिमिलैरिटी की भी एक डेफिनेशन जी, अगर आप देखा जाए तो हमारे लिए जो मेट्रोज हैं उनको जनरलाइज करके हम एक चीज कर सकते हैं. बट अगर मैं ये कहूँ कि साउथ दिल्ली और यमुना पार की कस्टमर और क्लाइंट सर्विस या उनका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू या टेस्ट ऑफ फूड सब सेम होगा तो नहीं, सब अलग अलग होगा. सो वो तो हमको हर जगह पे करना ही पड़ता है. बट हमको उस सेक्टर में जा रहे हैं तो हमको ये प्राइस पॉइंट चाहिए, ये कलर और ये क्वालिटी चाहिए, ये ब्रांड परसेप्शन चाहिए. वो चीज हम थोड़ा वाइड कर देते हैं ताकि वो दोनों ज्योग्राफी कवर कर ले. बट अगर आप ये देखो कि साउथ दिल्ली ये है, यमुना पार ये है, तो गाजियाबाद ये है और उसके बाद मुरादाबाद ये है. सो वो सब एक अलग है. तो आप मुरादाबाद और साउथ दिल्ली को मर्ज करने के लिए आपके जो SKUs हैं या प्रोडक्ट्स हैं या कलर्स हैं वो टोटली बहुत वेरिड हो जाएंगे. तो कस्टमर क्या सोचेगा, कंफ्यूज्ड है, यार ये क्या चाहता क्या है, मुझे ये हॉट पिंक और ये दे रहा है और नियॉन कलर्स और मुझे तो चेक सिंपल सा. सो पॉइंट इज दैट व्हेन यू हैव टू बिकम अ ब्रांड एज अ स्टार्टअप, यू स्टार्ट विद अ स्मॉलर मार्केट. You start with the perception of a brand, and then you add another vertical, another sub brand name to go to a smaller city because वहाँ का सोच और समझ
और प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट अलग है. दैट इज हाउ इट वर्क. सो अगर नायका का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर वो दिल्ली बॉम्बे की आप SKUs देखोगे, जब आप वहाँ उसकी IP एड्रेस देखोगे तो उनके अलग होगा, प्राइस पॉइंट भी अलग होगा. और वही जब आप जब छोटे शहर में देखोगे, मुरादाबाद में देखोगे या रोहतक में देखोगे, तो वो थोड़ा सा ट्वीट हो जाएगा. एंड देन यू गो डीपर डाउन, अगर आप जाओगे तो वो जब तक जो आदमी प्रोडक्ट पे बैठा है, जो आदमी प्रोडक्ट डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, ऐप डिजाइन बैठा है, वो जब तक सारी कस्टमर्स को नहीं समझेगा और ज्योग्राफी बेस्ड IP सिस्टम से उसको चेंज नहीं करेगा, उसका परसेप्शन ऑफ प्राइस पॉइंट या ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं होगी, क्योंकि वो कस्टमर उससे रिलेट नहीं कर रहा है. तो ये चीज बहुत जरूरी है. और धीरे धीरे फिर क्या होता है, आदमी ग्रेजुएट करके महंगी चीज लेता है, तो क्या है, पहले क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट है. तो अगर मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू 500 रुपए किसी शहर का है नायका में, तो सबसे पहले वो आना चाहिए. ये नहीं कि 5000 का नहीं आना चाहिए, नीचे आएगा वो. जैसे कि आप वो एल्गो है या जो AI है या जो हमारे को टेक्नोलॉजी जो सिखाती है, क्योंकि हमारी सर्च उसमें है, और वो चीज से जब तक वो आप रिलेट नहीं करेंगे, जैसे हम शेल्फ स्पेस होती है, तो अब इस आई विजन पे हम प्राइम रखते हैं, नीचे हम कम बिकने वाले रखते हैं, वो शेल्फ स्पेस बदलती रहती है. वही हमारे ऐप में भी शेल्फ स्पेस है, हमारे वेबसाइट में भी शेल्फ स्पेस है. तो एवरीथिंग दैट इज बीइंग सोल्ड हैज टू बी अ डिफरेंट दिस थिंग. यू कांट हैव द सेम थिंग एवरीवेयर. तो फिर ट्रेंड्स कैसे बनते हैं? क्योंकि ये जो आप कह रहे हो, इससे तो मुझे ये समझ में आया कि वी अंडरस्टैंड कि वहां मुरादाबाद, रोहतक के लोग क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, और हमने पहले वो दिया, राइट. बट लोगों को चेंज चाहिए होता है, जो लोग करते हैं. तो क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा ब्रांड बढ़ता है या ब्रांड परसेप्शन बढ़ती है, लोगों के बीच में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट होता है, या जो भी तरह से हमारी PR और मार्केटिंग से ब्रांड होता है, तो आप देखेंगे नीचे वाले शहरों में भी ऊंचे सामान लेने की या कॉपी करने की या ब्रांड को अपने आप को लेवल एक अप करने की इच्छा रहती है. दैट एस्पिरेशनल वैल्यू इज व्हाट यू आर प्लेइंग विथ. सो व्हेन अ हाई एंड कार गिव्स एन एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर फॉर द टॉप मॉडल, वो बिकती 500 है पूरे साल में, पूरे इंडिया में, पर वो पूरे के पूरे फ्रंट पेज पे दुनिया को वो दिखा रहा है. वो खाली एस्पिरेशनल क्रिएट कर रहा है, और अपने फीचर्स जो हैं वो किसी को ये समझ नहीं आता कि ये फीचर्स उसमें नहीं मिलेंगे मुझे, बट वो ये बताता है कि ये कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है, वेयरविदऑल है टू ग्रो, एंड आई कैन ग्रो विद दैट कंपनी. तो वो चीज जो समझने की बहुत जरूरी है कि अल्टीमेटली मेरे दिमाग में और जहन में ये बैठना चाहिए कि ये कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाती है. उसके बाद जब मैं सस्ती चीज भी लेने जाऊंगा और वो नाम आएगा, तभी मैं वो खरीद लूंगा कि यार ये ना हो इस कंपनी की क्वालिटी और सप्लाई और नाम अच्छा है. इफ यू लाइक लुक एट एनी ब्रांड्स, कोई भी पूरे ब्रांड का एक एम्बेसडर नहीं होता है, हर प्रोडक्ट का एक होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर कर्टन का कोई है, बेडशीट का कोई है, बिकॉज वो परसेप्शन. और ये प्राइस सेगमेंट पे भी एम्बेसडर चाहिए. प्राइस पे भी हो जाता है, ज्योग्राफी पे भी होता है. साउथ इंडिया में अलग हो जाएगा, नॉर्थ इंडिया में अलग हो जाएगा, बिकॉज अगर सेलिब्रिटी है तो सी, एंड प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई होना चाहिए वो व्यक्ति, ब्रांड. सो वो चीज, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे फिल्म वाला हो, अगर उसका उससे सिनोनिमस नहीं होगा और वो फेक लगता है. सी, एक्टर्स कैन बिकम एनी कैरेक्टर, वो गांव वाला भी बन सकते हैं, बट हर पे एक लेबल लगा हुआ है कि ये ऐसा एक्टर है. So, वो जब तक हम किसी शहर वाले को गांव वाला भी बनाएंगे, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन स्टार को जो फिल्म इंडस्ट्री में पैदा हुआ है, उसको रिलेट करना मुश्किल है. ऐसा नहीं कि वो एक्टिंग अच्छी नहीं करेगा या लुक में अच्छा नहीं दिखेगा, इट्स जस्ट दैट वो चीज वर्क करेगी नहीं. मेरे कस्टमर को भी समझ आ रहा है कि ये है नहीं, ये गांव वाला है नहीं, ये गांव वाला है नहीं, खाली बेचने के लिए कर रहा है, which is not the right thing to do. So these creative agencies are good at it, but you as a startup or an investor or an entrepreneur also should understand these things, because then you will be able to perceive your company in the right direction, because future भी देखना है ना आपको. It is not just about today's sale, it's about building a brand, and it takes time. It absolutely takes a time. And मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड को बिल्ड होने में बहुत साल लगते हैं और खत्म होने में 2 मिनट लगते हैं, अगर
अगर आप कोई ऐसा गलत कैंपेनिंग हो गई, गलत मैसेजिंग चली गई, तो कस्टमर को आज अबैंडन करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता. many use cases कि उनको नेगेटिव कैंपेन से निकलने आने में बहुत समय लगता है. It's a very difficult thing. अभी एक यूनिवर्सिटी is getting out of that area. पहले fast food में Maggie had an issue. So all these people takes a lot of effort and time to come. Air India after the crash. So it's a very difficult task to come out of it. It takes a lot of money and effort. And you can save all that if you consistently keep your brand in line with everything. And of course, luck has to favor you. Yeah. It's a lot of luck also. वो कौन सी या तो हमारी हैबिट्स होंगी या हमारा वे ऑफ थिंकिंग होगा जो कि हमारे इन सारे इंटेंशंस के ऊपर चला जाता है इन कॉजिंग अ फेलियर. व्हाट आर द रेसिपीज फॉर फेलियर Oh God. in spite of being good? So let me start to build a context. हाँ. See, क्या होता है morals and ethics and conscious. इसकी जवाबदेही आप ही की है, किसी की नहीं होती है. टेम्पटेशन बहुत मिलता है, शॉर्टकट्स बहुत मिलते हैं. See, मेरा ये मानना है कि डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है कि यार मैं for the time being I will make this 10 gram cream into a 9.5 gram cream. I'll write 9.5. किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, ट्यूब वही रहेगी ताकि मेरे 5% प्राइस का मुझे एडवांटेज मिल जाए. आपने बोर्ड में भी बता दिया, आपने टीम को बता दिया और अल्टीमेटली फाइन प्रिंट में कस्टमर को भी मालूम पड़ता है, लिखना तो पड़ेगा ही वेट. वहां तक तो समझ में आता है कि आपको प्राइस नहीं बढ़ाना है, आपने क्वांटिटी कम कर ली. एंड पीपल हैव डन दैट. जो आप 10 बिस्किट डालते थे आपने 9 डालने शुरू किए या आपने 2 बिस्किट की पैकेजिंग शुरू कर दी. वो चीजें तो वहां तक तो देखो कंपटीशन एंड यूनिकनेस और बॉर्डर लाइन इशू है. लेकिन अगर आपने बोला कि मैं तो फैट फ्री हूँ, शुगर फ्री हूँ, ये फ्री हूँ, वो फ्री हूँ, एंड इसमें वो है, देन यू आर चीटिंग द कस्टमर. Where does the man fail most? दुनिया के सामने no one cares. It's your family, it's your immediate, your children, your spouse, you yourself. If you don't have this, you fail in front of yourself. वो जो failure publicly, you can fail 10 times in public. But the 11th you will succeed and you will become much powerful than those 10 failures. So what is important is consistency on what you believe in and what you can stand by or what you can sleep with. That's why I tell everyone that even if you have to do something, do it with full disclosure. You say that we are trying to get out of this situation. This is my employees. we're going to take a salary cut. I'm taking X percentage. I'm taking this much. We have to survive. मैं झूठ बोलूं, 2 को निकालूं, 1 को रखूं, उसको परेशान करना शुरू कर दूं. No, that is not the right way to do it. Tell them that this is what it is. I can't increase salaries this year, or I can't give you a bonus because we want to do this. But you should lead by example. So multiple reasons for failure, and I can list all those reasons for failure for a startup separately. But the core failure is with it to yourselves, in my opinion. Startups failing, you're not understanding the market, you don't understand your customer, your unit economics are not right, you are in a sector that is a high burn sector, you're competing with people who have no sense or are not ethical and moral. So if that 100% fat free, you are trying to say कि मेरे में fiber ज़्यादा है, कोई fiber fortified है. All these words, fortification, fiber, sugar free, all these are used words. So if you're competing with someone who's not ethically right, then you have a challenge. If you're competing in a domain where someone has deep pockets and can burn money until you die, difficult. So choosing the right domain is important. Choosing the right team is important. If you're not dealing with your supply side, your customer, your employees, your marketing well enough, then also you will fail. If you are not pivoting when you have to pivot, if the need be for your business, then you will fail. So reasons of failure could be multiple, but those failures can be overcome on outcome, or the loss could be financial and time. But the first failures that I spoke about, which are answerable to yourself, are irreparable. You will never be able to get out of them. Absolutely. So आज जिन startups को आप mentor करते हैं, mentor, not just invest, आपने किसी के साथ involve करा है to build this culture? Absolutely. So my first and foremost mentoring advice is always to build a culture
to build a company for the long term, not for the short run. And to see what the competition and how ethical and moral is their competition, be ready for that. And if it is a bad world out there in a certain sector where मार काट की लड़ाई है, and for my biggest example is Pepsi, Coke and Campa. मतलब आज की तारीख में किसको IPL के राइट लेने हैं और किसको टी शर्ट पे जाना है और किसको टेलीविजन पे ऐड देना है और किसको होर्डिंग लगाने हैं, किसको एंडोर्समेंट चाहिए, लड़ रहे हैं आपस में. And fair, they're competing with each other. But and I have nothing against that. But जो अगर दूसरा सॉफ्ट बेवरेज में आएगा उसको पता होना चाहिए कि ये मार्केट ऐसा है. Are you cut out for it? Are you ready for it? So simple as that. And when alco beverage or soft beverage company comes to me, I tell them that. Similarly, ये 100% fat free, food free, Ayurvedic, 100% natural. 100% natural क्या होता है? पेड़ पर थोड़ा खा रहे हैं हम. So वो सब जब उस चीज में ये हो रहा है कि आपकी स्किन तो इससे 50 साल यंग हो जाएगी या आप गोरे हो जाएंगे, उस फील्ड में आप जा रहे हो जहां पे, आर यू रेडी टू से ऑल ऑफ दैट ऑल्सो एंड येट स्केल एंड सर्वाइव. सो वो चीज बतानी जरूरी है. सो आई टेल देम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट दिस इज व्हाट द चैलेंजेस ऑफ योर सेक्टर और इकोसिस्टम आर. नाउ इफ यू आर कट आउट फॉर दैट एंड इफ यू आर रेडी फॉर दैट एंड यू विल स्टैंड टॉल डिस्पाइट this and build a strong foundation वाला company, then I'm there to mentor you. So शुरुआत ही ethics और morals से और sector से होती है ना. फिर उसको individually improve करना और वो करना और judge करना तो रास्ते में वो तो हमेशा ही हो रहा है. But if you find a set of founders who have less of these habits and less of these ethics, but they have a good business logic to it, that if they fall for these ethics, then they can't really scale up because the whole system is dirty. Would you abandon these startups or would you mentor and get them to an honest level? No. So I love street smart kids. I love kids who have a way out to everything. I mean, I'll tell you something, for example, and there are many examples. I mean, I would love talking to the minimalist founders. Absolutely, they were clear कि हमको नहीं करना है, हमको ये करना है, हमको 6 महीने टेस्ट करना है, हमको compromise नहीं करना है. So long run, you succeed. Shortcuts don't take you far because you create a brand and a perception because you follow it. They try it on themselves, and so these are great examples, and there's so many stories like that. So I'll come back to this, but आपने बोला कि अपनी values पे खड़े रहते हैं अगर हम, तो वो हार नहीं होती है. आप फिर से उस पे build up कर सकते हो. So as a young person, स्कूल कॉलेज से पास आउट हुए हैं, जो अभी ये पूरी डर्टी वर्ल्ड में आ रहे हैं, कैसे अपनी वैल्यूज को डिफाइन करें? देखो, वैल्यूज को डिफाइन करना के लिए आपको अपने आप को जानना जरूरी होता है. पहले तो आप कौन है, आप में काबिलियत क्या है, आप में कमियां क्या हैं, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आप इम्पेशेंट हैं, आप टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, whatever those lists of things that you are not and things you are, लिख लिए. अब जो not हैं उसमें से कुछ चीजें तो आप सीख सकते हो, whether it's technology, whether it's certain things. कुछ चीजें आप नहीं सीख सकते, आप नहीं change कर सकते because it's difficult, it's personality, it's background, it's a lot of hard work. जैसे anger. I mean, see, so I'm coming to that. For example, you can't manage your anger, let's say, or you're impatient. You have like a whole lot of reasons for it. And which is fine. So अब उसको ठीक नहीं कर सकते हैं. तो हर नेगेटिव का मेरा ये मानना है एक पॉजिटिव साइड होती है. So I always tell my startups, whenever you go, if you don't have an answer, or if you don't, just say you have a point. I don't think so, but let me think about it or discuss it with my investor or my mentor and come back to you. So वो सोचने में एक तो आपको खुद को सोचने का टाइम मिल गया. दूसरा, आपने एक बाउंस कर लिया किसी मेंटर को या एडवाइजर से. So you get a second opinion. Right and wrong might not change. It can still be wrong, but still you've taken a calculated decision. I mean, there's a very good saying that एक तो अनजाने में गलती करना और एक जानबूझ की गलती करना. दोनों बातों में आपको मालूम है आप बेशक तो जानबूझ के कर रहे हो आप गलती. So it's better that you do a calculated mistake, a thought through mistake, than to do a impulsive mistake and then feel sorry about it and lose confidence about your ability to decide. बाद में रिफ्लेक्ट जब करते हैं, जो स्ट्रेंथ हैं
उससे क्या मतलब समझ में आता है? स्ट्रेंथ से मतलब ये होता है कि आपको उस डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए, ओके, उस सेक्टर में काम करना चाहिए जिसमें आपकी काबिलियतों की ज्यादा उपयोग हो सके। अगर आप ऐसे सेक्टर में, मान लीजिए यू हैव, आपको बोलने में अच्छे हैं आप, आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी है, आपकी लॉजिक अच्छा है, आप आदमी को समझने में परखने में अच्छे हैं, you should be in sales and marketing. Why not? Because you're good at communicating. If you are a good person, an organized person, and you create templates and sheets and do all of that, and you are a backstage kind of a person where you can give your friend or boss or teacher the right kind of advice and notes, you should be an operations person. So all these, everyone has traits. Then wherever you are enjoying yourself, वो अपने आप ही ट्रेड के हिसाब से enjoyment आता है, because you are lauded for जो आप कर रहे हो, तो तारीफ तभी होगी जब आप उसमें अच्छे हैं तो, और अच्छे नहीं भी होंगे लेकिन अच्छा कर रहे हैं तो आप उसमें अच्छे माने जाएंगे. So it's very important that you try and do what everyone thinks that you should be doing or what you think you should be doing, और अपनी ताकतों को, अपनी स्ट्रेंथ्स को ऑप्टिमल यूज करने में ही हमारा फायदा है. जब डाउट हो तो उसको डिबेट और क्वेश्चन करो, एंड देन वंस, बिकॉज इफ यू, आई हैव ऑलवेज रियलाइज्ड, इफ यू रीड समथिंग you can remember it for a few months. If you read something and tell it to someone, you can remember it for a few years. Right. If you share it with other people, because you're repeating the same thing. If you debate and discuss and go into the depth of the thing, then why not, you will never forget it. So if you remember in your class also, जो आपने रट्टा लगाया फॉर्मूले का मैथ्स का, वो तो भूल जाते हो. कुछ याद नहीं है. जो आपने 2 बच्चों को सिखाया है, पढ़ाया, वो थोड़ा बहुत याद रहता है. लेकिन जिस पे आपने कहा कि सर ये मेथड तो सही है मैथ्स का, लेकिन मेरे पास ये तरीका भी है, कैन आई डू दिस वे, तो एंड दैट आर्ग्यूमेंट में टीचर बताया नहीं, दिस विल टेक टाइम लॉन्गर, व्हाट विल यू डू इफ देयर आर डेसिमल्स, देन यू विल नेवर फॉरगेट इट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू आर इन समथिंग दैट इज लॉन्ग टर्म, ऑलवेज डिस्कस इट एंड डिबेट इट. इट्स ऑलवेज गुड टू. और अगर डिस्कस डिबेट का एनवायरनमेंट ना मिले, दोस्तों से, पीयर्स, खुद से राइट डाउन द पॉइंट्स फॉर एंड अगेंस्ट. क्या होता है कि मेरे को ये लगता है कि इवन ओरल पढ़ने से लिखना ज्यादा बेहतर होता है. सो आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं, मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में क्वेश्चन का एनवायरनमेंट कम होता जा रहा है ना. टाइम की कैपेसिटी है, बहुत सारी चीजें करनी है सबको बहुत कम टाइम में, और इन जनरल भी पेशेंस भी कम होता जा रहा है, और सामने वाले की खुद की नॉलेज भी कम होती जा रही है. जिस तरह से पहले के टीचर्स बहुत वेल रेड होते थे, वो भी कम होता जा रहा है. एंड फैमिली में भी हमारे पास टाइम कम है, हमारी खुद की IQ है. सो मुझे ऐसा लगता है जब यंग लोग को हम बोलते तो हैं कि क्वेश्चन पूछो, लेकिन हम शायद वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जिसमें वो क्वेश्चन पूछें. क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मैं सबको ये बोलता हूँ और आज फिर बोलता हूँ, AI will disrupt education. टीचर्स को हाउ तो सिखाना ही नहीं चाहिए. मैथ्स का सवाल कैसे करना है, जवाब क्या लिखना है, पॉइंट्स क्या लिखने हैं, वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है. वो तो अभी मैं ChatGPT में डालूंगा, मुझे सब जवाब मिल जाएगा और बेटर जवाब मिलेगा. कि मुझे 2+2 4 करने के कितने तरीके हैं वो बता दो, तो ChatGPT. वो सीखना आना जरूरी नहीं है. हाउ में पढ़ने से आप अगर आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है, और आपने लिख दिया कि अमेरिकन सिविल वॉर क्यों हुआ, गिव मी 5 पॉइंट्स, आपने पढ़ लिए, रट्टा लगा लिया, एग्जाम में जाके उसको इलैबोरेट कर दिया. व्हाट यू नीड टू लर्न इज कि अमेरिकन सिविल वॉर हुआ क्यों. द व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट. व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू ब्रिटिश invading India? What were the circumstances that led to X person assassinating Y? It is very important that the why is more important. Now, it's not that AI can't answer why. AI can answer why. But when I'm reading the why that AI is given, and why I'm questioning मेरा why क्या है, और teacher का why क्या है, और debate का why क्या है, वो तीनों भी अलग अलग होते हैं. So to understand that why, and you questioning something, कि why am I learning this x plus y whole square is x square plus y square plus 2xy. क्यों सीख रहा हूं मैं ये फॉर्मूला? क्यों सीख? No reason. I will never use it. ठीक है? तो मुझे खाली एग्जाम के लिए सीख रहा हूं. It's useless in my opinion. It should not be part of the curriculum. What should be the concept कि मैं इसको अप्लाई कहाँ करूंगा? तो मैं इसको अप्लाई, तो वो टीचर को ये नहीं बताना चाहिए फॉर्मूला क्या है. इसको बोलो कि ये जो चीज है, अगर आप यहाँ खड़े हो और आप उस मीनार को देख रहे हो तो आपको डिस्टेंस कैसे मालूम पड़ेगा. यहाँ आप मून को देख रहे हो तो आपको
phone. So actual usage is important. Usage is important. It's very important that you understand and create your ability to judge people, right? और आपसे अगर गलती होती है तो वो एनालाइज करना पड़ेगा कि मैंने उसको आदमी को पढ़ने में गलती कैसे कर दी, और गलती करी तो मैंने क्यों गलती करी. आई हैव टू चेंज दैट प्री कंसीव्ड नोशन इन माई माइंड कि जो ऐसा करता है वो ऐसा होता है, जरूरी नहीं है. और किसी को प्री जज तो करना ही नहीं चाहिए. You should give everyone the opportunity to do what they're doing before you start to judge them. How to read the facades? Like some people are very good at putting up a picture, right? And you must be dealing with it all the time. So, देखिए, पहली बात तो दो बातें हैं. आप अगर किसी से शादी करने जा रहे हैं या इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको हर फसाड, हर फेक को जानना जरूरी है. प्लस क्या, हिस्ट्री तो छुपती नहीं है ना कभी भी. आपकी चाहे स्टार्टअप की जर्नी हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे लाइफ हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, वो हमको मिल ही जाता है. तो वो कहीं ना कहीं से वी ऑल्सो फाइंड आउट. एंड और नहीं भी होता और गलती हो भी जाती तो 4-6 महीने में मालूम पड़ जाता है. तो वो 4-6 महीने में या तो फिर यू लेट द एम्प्लॉय गो और यू फील दैट ये स्टार्टअप गलती हो गई स्टार्टअप की, देन यू स्टार्ट चेकिंग दैट पर्सन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, और यू डील विद अ को-फाउंडर, और यू क्रिएट अ सिचुएशन वेयर व्हाटएवर इज डन एंड यू मूव ऑन. ऐसा नहीं है कि आई एम, यू आर ऑलवेज राइट. मुझसे भी गलती होती है और हो भी सकती है. So, जब हम फसाड डिटेक्ट करते हैं, तो अगर हम अथॉरिटी वाली पोजीशन पे और हमने अपने से जूनियर वाले के फसाड चेक किया, आई फील इट्स इजियर टू कॉल इट आउट, यू नो, बिकॉज आपके पास अथॉरिटी है. बट लेट्स से एक स्टार्टअप फाउंडर है और वो उसको इन्वेस्टर का फसाड बाद में पता चलता है या एट सम पॉइंट पता चलता है. अब यहाँ पे अथॉरिटी गेम डिफरेंट है, तो कैसे हैंडल करें? हैंडल करना मुश्किल है, बट आई थिंक कॉलिंग a kettle black is something that one should do. The language can be toned down. Yes, sir. With all due respect, I don't agree with this thing. I know you might be right and I might be wrong. लेकिन ये चीज़ मेरे हिसाब से सही नहीं है जो आप कर रहे हैं कंपनी के साथ. या स्टार्टअप बंद हो जाएगी. मैं आपको तो एक बार उसको तरीके से बोलना तो पड़ेगा. चाहे आप बोल नहीं सकते हैं ज़बानी, तो लिखित में लाना पड़ेगा. I have some money that I would like to invest, then I can go to an angel network and then what? Or you can go to a local college, incubation centers, co-working spaces. Make yourselves visible. So you don't have to always go to an angel network because they will only bring a deal of certain size. Then you will be one out of 100 people investing. So you're saying that or learning is very minimal. Right. But if you really want to learn hands-on, I would go to incubation centers, accelerators, state government ecosystems that they have created now. Go to co-working spaces. Talk to people, see who needs, see what sector you want to invest. Because see, initially, पहले 2-3 इन्वेस्टमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. बिकॉज वो आपकी कॉन्फिडेंस को ब्रेक और मेक कर सकते हैं. आपके पेरेंट्स के कॉन्फिडेंस को आपके अंदर ब्रेक और मेक कर सकते हैं. सो सोच समझ के करना चाहिए. जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. राय ले लेनी चाहिए. को-वर्किंग स्पेस हो, चाहे इंक्यूबेशन सेंटर हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, पढ़ के समझ के साथ जुड़ के सही इक्विटी, ये नहीं 50% ले ली, जो इन्वेस्टर की होनी चाहिए 8-10%, 12%, उससे ऊपर नहीं लेनी चाहिए. बिकॉज और मेंटर होना बहुत जरूरी है खुद के लिए भी. So 2 things here. How does a startup decide how much equity to give to a investor who is new in the game? कम से कम, बिकॉज वो भी नया है एंड आप भी शुरुआत की दौर में ही और नए हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द नेक्स्ट राउंड में जो इन्वेस्टर आए, जो एक्सपीरियंस्ड हो, उसको ये नहीं लगे कि बहुत ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूट हो गई है. तो जो शुरुआती इन्वेस्टर को कम ही लेनी चाहिए, 3 से 4%, ताकि आने वाला सामने वाला 7-8% ले और ज़्यादा पैसे भी लगाए, और एक लेवल से लेके आप उसको एक लेवल तक लेके जाओ, प्रोटोटाइप बन जाए, मार्केट वैलिडेशन हो जाए, 6-8-9 महीने का रेवेन्यू आ जाए विद दैट स्मॉल सम,
और बेस्ट है कन्वर्टेबल पे लेना चाहिए कि बॉस 1 साल में अपन रेस करेंगे, आई विल गेट 20% डिस्काउंट, एंड 20% डिस्काउंट इज अ गुड डिस्काउंट फॉर 1 ईयर, और 2 साल होगा तो 30% डिस्काउंट। तो अगर अगला अक्रेडिटेड इन्वेस्टर या अक्रेडिटेड एंजल या तजुर्बेकार एंजल आता है और वो 50 करोड़ की वैल्यूएशन या 20 करोड़ की वैल्यूएशन दे रहा है, तो आपको 30% डिस्काउंट 2 साल में 14 पे मिल रही है। तो अगर आपने 1 करोड़ दिया तो उसको उतना मिलेगा, वो 1 करोड़ देगा तो उसको 5% मिलेगा, तो आपको ज्यादा मिलेगा। हाँ. So why are you worried? And you are leaving it to validation by an external investor. You're not just a local boy investing in an incubation or a college that you are part of. Yeah. It's easy that way. That is how I would do it.